I put on recording, okay? Somebody wanted, now you tell me what all things you wanted now. What all सर things? कंप्लीट एनालिसिस ले लेंगे ना। हाँ सर एसेंडेंट कौन सा है इसमें? कैंसर है 9 डिग्री का। ओके सर हम पहले स्टार्टिंग से ले लेते हैं पूरा एनालिसिस, मतलब अष्टक वर्ग में कैसे कैसे स्टार्ट करना है, डिस्पोजिटर उसका। अच्छा मैं एक एक जन को बोलेगा, एक एक जन चालू करो। हाँ ओके, आई विल ओनली हैंड होल्ड यू, ओके? नाउ first I will just give you a the rule as to how to approach a chart. समझ गया? First look at the lagna, okay? Look at the lagna, then look at lagna lord, then you look at karak, okay? Okay, then now tell me, take lagna, who will start? And nobody else will talk, only one person will talk. Parag, would you like to take it up? Sir, okay, I will take it up. If we look at the chart, we will see that the Lagna is Cancer, and in the Lagna, the Jupiter is sitting. It's an exalted planet in the Lagna. But if we go and now, shall we go with the Ashtavarga point of view, or should we go with the normal Gemini or Parashari point of view? See, you first go into Parashari, then you go into Ashtakvar. Okay. So we can see that the Lagna is Cancer, which is a watery element, and Jupiter is sitting in the Lagna, and Jupiter is almost conjunct with the Lagna Bindu. So it is going to have a Ucha point of Lagna. Jupiter is going to give. As it's a Cancer ascendant, so it is going to have an emotional temperament for that particular person, as well as it can, as Jupiter is sitting over there, it can give some body of some fatty body. Okay, now in the looks wise, this you add in that when you see Lagna, you see Lagna star lord also you see. Okay. Okay. So Lagna star is in Lagna is in Pushya Nakshatra, second pada, and its star lord is Saturn. So Saturn is currently sitting in the second house when it is retrograde, along with Moon and Rahu. So degreically, if we see, Moon is at 6 degrees and Saturn is at 14 degrees. So there is no actual conjunction of Moon or Saturn. So we can't say that it's a Shani Chandra Yoga or Punarfi Yoga is not present over there. Now, how will you deal with Ascendant Lord Moon? Yeah, Ascendant Lord is currently, what we can say is, it is sitting in the second house, which is hampered between Saturn and Rahu. So it's like in a Papa Kartari, because in the third house also the Pluto, which we do not consider in Ashtak Varga, but Pluto, which is also somehow malefic planet, is also there in the third house. No, you don't take Pluto, Uranus and as it is into the so as Moon is hampered in between Papa Kartari of Saturn and Rahu, and it into the second house, so there could be some problems related to some family matters, financial issues, and emotionally some, what you can say, imbalance while talking, not able to express. Now, how will you treat now from the point of view of Ascendant Lord? You took Ascendant is conjunct Jupiter, correct? Yes. Now, Ascendant Lord is conjunct Saturn and Rahu. Yeah. Correct? Now, yes. Ascendant Lord conjunct Saturn and Rahu, how will you treat that? I will take it to nearly to Preta Shapa Yoga or something kind of a Punarvi
powerful yoga kind of thing, and as it is in Papakartari, so while talking, that particular person may not be able to disclose himself No, very well. no. See, you have to mix the ascendant lord with the lordship of the Saturn. Okay. Saturn is So it is lordship, the ascendant lord. Yeah. ascendant lord moon is with the 8th lord Saturn, and that moon is also Yes, sir. aspected by Venus, which is the Badaka lord for Yes. this person. Yes, sir. Correct? Badaka lord for this 11th house person. lord. Yeah. Yes. 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 So what will you say with respect to this person's health first? And also monetary matters and family matter. Yeah. Uh, Ideally, there seems to be like some what we can call it as a Pitru dosha type of thing in No, this no, no. particular chart. No. See, don't get into dosha. You just tell me Okay. ascendant lord connected with the 8th Huh. lord, aspected by Yeah. Badaka lord Venus. What will Huh. you say? Yeah. This particular person, as it is affected by the Padaka as well as the 8th lord, Hmm. and it is also the Saturn is also the lord of 7th, which is also Marak. So what kind So of a disease considering he all will these have? things, What kind of a disease he will is have? going. This particular person is going to have diseases of the fiery type of and Vata, Pitta, Prakriti type of diseases. Tell me the body part. This particular the legs is the calf is one part, and the disease is related to the what we can call it as Agni Tattva in the stomach will get hampered. Why did you say stomach? Sorry, Why did you say stomach? stomach is because the reason is the Agni gets, that means the Pitta gets activated over there in stomach, and the Lord is sitting in the fiery sign, which is Leo. Leo is stomach. Okay, Leo is not stomach actually. Leo is the what we can call it as upper part of the stomach. Upper intestine is stomach. Upper intestine of Yes, the yes. stomach is So Leo. acid reflux issues could be there. Acidity related issues will be there. Acid reflux will not be there because Mars is not aspecting. Okay. Okay. It is in a fiery sign. But this person will have problem in the eyes also. Eyes. Okay. Yeah. Yes, sir. Second Right eye. house is eyes. Left eye. Yeah. Okay. No, this Yeah. is Left eye. this is a female, so moon is left. Okay. Now also you will see that second house is afflicted, so he will perennial, there will be financial issues, there will be family issues, and all those things will be there. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Now And income could be also some. now We won't be another able to judge the income because now out there. let another person come in. Who wants to take it up? Who मैं wants बताऊं? to take it up? सर मैं ट्राई करता हूँ। कौन? शिशिर, शिशिर हाँ करो। सर कहाँ से स्टार्ट करना है, लग्न से ही? नहीं, पहला इसका बोलो। जो ये है ना अपना स्टॉप किया इधर ना डिजीज के ऊपर। ओके, तो थर्ड हाउस से स्टार्ट करूं? अभी ट्रांजिट लगाओ, ट्रांजिट ट्रांजिट लगाओ। राहु केतु पे से जा रहा है हाँ, और जुपिटर पुष्य में है। एक एक जान केतु सेकंड हाउस पे जा रहा है। एक जान अभी ट्रांजिट लगाओ। लेकिन चार्ट वो लग्न से नहीं है ना सर मैं बोल दूं? हाँ अरविंद भाई आप चलिए। अरविंद बोलो। वो समझ नहीं पड़ रहा है। देखो सर, ट्रांजिट जुपिटर पे से जा रहा है अभी फिलहाल। राहु सन वीनस के ऊपर से जा रहा है 8 हाउस में,
केतु सेकंड हाउस से जा रहा है मून सैटर्न और राहु के ऊपर से। हम्म। केतु Saturn मून जो के है- ऊपर से, केतु मून के ऊपर से जा रहा है। Yes. तो सर बराबर। मेरे हिसाब से जो अपन जो डिसीज का जब ले रहे थे ना, इसका तो ठीक है राइट आई का है, लेकिन इसके वाइफ को या तो पार्टनर को जो है बड़ा बड़ा इश्यू आ सकता है, ऐसा है। नहीं नहीं, वाइफ को सब अपने कल ही नेटिव को बोलेंगे, नेटिव को कल, वाइफ को सब बाबा बम से घुमा सकता है, बट लेट अस स्टिक टू द नेटिव ओनली। अभी फर्स्ट ट्रांजिट हम लोग लेंगे तो केतु जा रहा है चंद्र के ऊपर से, बराबर। हाँ जी, यस लग्न का लॉर्ड है Yes. और बाद में सेकंड हाउस में है। यस सर। Yes. पैसे को लेके ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मेंटल एंजाइटी, ओके। और मदर का हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकता है, फैमिली में इश्यूज है, ओके ओके। नाउ यस सर। अष्टक वर्ग में कैसा लगाएगा? सर अष्टक वर्ग में जो लग्न है ये मेरे ख्याल से मंगल की कक्षा का है, हाँ, और जो लग्न अष्टक- है मून, अष्टक वर्ग लगाता हूं, इधर है अष्टक वर्ग, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अष्टक वर्ग इधर है। अष्टक वर्ग में जो एसेंडेंट है ये मंगल की कक्षा में, थर्ड कक्षा में, और जो एसेंडेंट लॉर्ड जो है ये जुपिटर की कक्षा में बैठा है। नहीं, अभी एसेंडेंट का बराबर। डिग्री जो है, एसेंडेंट डिग्री 9 डिग्रीज में है, बराबर। थर्ड कक्षा। थर्ड कक्षा में है, उधर पॉइंट दिया है क्या? वो देखना पड़ेगा सर, देखा इधर है ना, इधर है, सामने है, इधर लगा है मैंने, दिख रहा है ना? स्क्रीन दिखता नहीं, एक मिनट नहीं, ये 0 पॉइंट दे रहा है मंगल, 0 है ना? 0 पॉइंट दे रहा है कर्क को। हाँ, और वो मंगल जीरो है। हाँ, मंगल 5वें स्थान का मालिक है और 10वें स्थान का मालिक है, 9वें स्थान में है, तो क्या देगा इसको अष्टक वर्ग के हिसाब से? संतान सुख में हानि आ सकता है सर, हायर एजुकेशन में हानि आ सकता है, और बिजनेस में हानि आ सकता है। बिजनेस क्यों बोला? 10th हाउस पकड़ा सर। 10th लॉर्ड है ना। और 9th हाउस का पिताजी के साथ भी संबंध ठीक नहीं रहेगा। फादर के साथ भी संबंध खराब करेगा, बेटे के साथ भी संबंध खराब करेगा। हाँ, तो अभी हम लोग रुकते हैं, अभी पल्लवी को बोलने दो क्या क्या है ये इसके बारे में। सर एक सेकंड, इसमें ना 5th हाउस में पॉइंट भी काफी डाउन हो रहे हैं। 4th में 31 है, 5th में 26 ही है। नहीं नहीं, अभी मत करो, अभी उसमें से हम लग्न में कॉन्सेंट्रेट किया हम लोग ने। पल्लवी बोलो। सॉरी सर। Sir, what you want to know? Tell the background of this person. फैमिली Uh, बैकग्राउंड। Whatever we have said, family, all these are okay or not okay. means the female personality. She is very rigid and stubborn. Hmm. She is having a very deep issues with family. Hmm. She is ignoring the family. Hmm. Means probably in-laws in a very bad manner, Hmm. which is very disturbing. Hmm. And सास because के of साथ ज्यादा हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मदर इन लॉ के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, बच्चे का वो सब जो भी बोला वो सब क्या क्या है, सही है गलत है बोलो। हाँ, बच्चे का प्रॉब्लम है उसको, and she is now and then affected by uterus problems because Venus is in 8th house, and she had mentioned उसका मतलब ovaries में और problems है ही। एक मिनट। Moon is uterus, for all your information. Okay. ओके सर। Moon is uterus. Moon is monthly cycles in the female. Okay. Okay. Now tell me. हाँ, आगे बोलो हाँ, क्या तो क्या है? मतलब कंसीविंग में भी प्रॉब्लम था, and after many attempts she had one girl child, but due to family issues she is not ready to further continue. मतलब marital bliss तो एकदम zero है. She is very shrewd when talking, shrewd in behavior, and very next level का behavior है. We can't contemplate her behavior. And the Unpredictable है. health wise, Health wise she is having a loss of hair.
मतलब ये यूट्रस का तो प्रॉब्लम है ही है, लॉस ऑफ हेयर दिख रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना How is बार्डनेस टाइप। how is the current mental setup of this lady? Very disturbed, very disturbed. It disturbs means what? She is very strong. What she wants in her own way. And in the same house, she is living separately with her in-laws. She is not taking care of his husband also. She is just staying because she for sake of family, मतलब पापा की side उसकी father and mother, they are telling that you should stay with your family. So she is staying because of her child. Other than she has no interest. Okay. अभी देखा हम लोग ने जो भी बोला सब बराबर आया। Yes sir, एकदम right. 5, 9, 10 एकदम exact. बराबर Second house भी. बराबर। Yes sir. पिताजी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? पिताजी का वो नहीं मानती है, नहीं मानती। ओके ओके। अभी अष्टक वर्ग में भी देखा हम लोग, अष्टक वर्ग में। हाँ बोलो पल्लवी। Means what is the problem that unki mother-in-law, she is also from a well-to-do family, and her father is also a well-to-do family, and because of that जो क्लैश होता है ना, ईगो क्लैश, वो अपने फादर को एकदम हायर हायरार्की में रखती है और बाकी सबको नीचे रखती है। ओके समझ में आया अभी कैसा किया हम लोग ने? Yes sir, एक अक्षर भी पकड़ना सर अपने को पहले तो first. हाँ क्या बोला अरविंद? कक्षा को पकड़ा उन्होंने। हाँ पहले हम लोग ने क्या किया, एसेंडेंट लिया, एसेंडेंट का नक्षत्र लिया, एसेंडेंट कौन सा डिग्री में है, वो कौन सा कक्षा में है, वो कक्षा में पॉइंट दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया तो उसके बारे में नेगेटिव बोला हम लोग ने। बराबर है वो सब नेगेटिव किस हिसाब से? वो मंगल 5वें स्थान का मालिक है, वो मंगल 10वें स्थान का मालिक है, और ये मंगल 9वें स्थान में है। ओके तो 5, 9, 10 इसका सबका हम लोग ने रिजल्ट दिया बेस्ड ऑन द एसेंडेंट डिग्री। बराबर? यस सर। ओके नाउ अभी एसेंडेंट लॉर्ड जब देखेंगे तो मून इज द एसेंडेंट लॉर्ड, तो वो कौन करेगा? अभी कौन करेगा मून के लिए? अशोक जी है, अशोक जी को बोलो। कोई भी ले लो ना। This is a chance for you to improve यार। सर मून जो है जुपिटर की कक्षा में है। हाँ जुपिटर ने पॉइंट दिया है क्या? देख रहे नहीं पॉइंट दिया है क्या? नहीं दिया सर, नहीं दिया, नहीं दिया है, लियो में पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया भाई। सिंह राशि में कोई पॉइंट नहीं है जुपिटर का। हाँ एक मिनट देख रहे सर दिया है ना, जुपिटर सर की स्क्रीन पे ही है ना, इधर ही है, है ना, इधर ही है देखो। जुपिटर में दिया है, नहीं दिया है, जुपिटर लियो में सिंह राशि में 0 पॉइंट है जुपिटर। नहीं दिया है, तो हाउ विल यू टेक इट? मून जो कक्षा में है वो कक्षा का लॉर्ड जुपिटर है, उधर भी 6th हाउस का लॉर्ड है वो जुपिटर, और 9th हाउस का लॉर्ड है। ओके बराबर? तो 6th हाउस और जो मून जो है लियो साइन में है। ओके तो लियो साइन इज सपोज टू बी द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक, और वो जुपिटर का कक्षा में है। जुपिटर इज सपोज टू बी फैट, जुपिटर इज सपोज टू बी फैट, सो हर बॉडी पार्ट above the navel and below the chest will be fat. फैटी लीवर, फैटी लीवर हो सकता है,
लीवर को भी हो सकता है प्रॉब्लमेटिक। पल्लवी, सर मतलब ऐसे तो वो बहुत ही लीन है, शी इज वेरी वेरी फ्रेजाइल, बट मे बी शी इज हैविंग अ फैटी लीवर, या नहीं नहीं, इज द बॉडी पार्ट, मिडिल बॉडी पार्ट इन द स्टोमक एरिया, इज इट अ बिट फैट as compared to the other part of the body? no, she is very lean, Very lean. Very lean. yeah. Was there तो any ब्लॉकेज हो सकते हैं। was there any extra growth in the stomach area? फाइब्रॉइड्स था उसको, हाँ, she had removed okay, फाइब्रॉइड्स था। okay. Because वो जो मून जो है ना, मून इज इन जुपिटर्स कक्षा, और जुपिटर हैज नॉट गिवन पॉइंट, and Jupiter is lord of the 6th house, so she is prone to the moon is uterus. Moon is also the stomach area. Okay, so यहाँ पर Jupiter, since it has not given any point there, वहां पर मून जो कक्षा में है, जुपिटर का कक्षा में है, वो पॉइंट नहीं दिया है, इसके लिए जुपिटर विल गिव ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ 6th हाउस। ओके सर। सर अगर मून जुपिटर ने पॉइंट दिया रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव अपन लेते ना। करेक्ट, ओके। और यही रिकवरी अच्छी होती। तो यही जुपिटर जो है लग्न में भी है, बराबर, और यही जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड भी है। ओके, तो फिर से वापस पिताजी के साथ जमना नहीं। जुपिटर जो है बच्चा है, तो लगन का अधिपति जुपिटर का कक्षा में है, तो इनका और इनके बच्चे का बनता नहीं है। बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम देता है। पल्लवी, ये बराबर है, बच्चे के साथ जमता नहीं है। नहीं, उसका बच्चे के साथ, लड़की के साथ तो उसका बहुत अच्छा जमता है, बहुत अच्छा। नहीं, मगर लड़की का क्या एज है? She is 21 year old. 21. ओके, शी इज इनटू सम बैड कंपनी और ऐसा कुछ है? No. शी इज इनटू सम, सी, ये जुपिटर का कक्षा इधर होने से दिया नहीं तो देयर कुड बी सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड बर्थ, हो सकता है, चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी में हो सकता है। हाँ, था उसका प्रॉब्लम, प्रोजेनी में प्रॉब्लम था ना। हाँ। अभी बच्चा होने के बाद सर एक मिनट है, मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ, अगर लड़की नहीं लड़का होता है इसको तो प्रॉब्लम होता, लड़की है करके प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ऐसा बोल सकते हैं अपन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो चंद्र जो है जुपिटर का कक्षा में, जो जिसने पॉइंट नहीं दिया है, तो उसके लिए चंद्र इस बच्चा का कारक है। ओके, सो बच्चे को रिलेटेड आगे इनको कुछ ना कुछ तकलीफ होगा। ओके, probably that the बच्चा could be not listening to her. बच्चा can be later on marry somebody against the wishes of the parents. Okay, बच्चा may be not obedient at a later stage. बच्चे से बाद में सेपरेट होना, ये सब होगा आगे। सर एक डाउट था, जुपिटर नहीं, चंद्र जुपिटर के कक्षा में है, तो हम लोग जुपिटर का विनाशक वर्ग देखते हैं ना? नहीं, क्यों रे बाबा, चंद्र का विनाशक वर्ग देखेगा ना। व्हाई यू आर गोइंग जुपिटर? चंद्र का विनाशक, ओके। उसमें जुपिटर ने लियो में पॉइंट दिया है कि नहीं, वो चेक करते हैं। हाँ, ओके, समझा। अभी ये सब कभी देगा? दशा अंतरदशा में देगा, बराबर है। अभी दशा अंतरदशा देखने जाएंगे तो नाउ 2028 में आएगा सर जुपिटर। मून का दशा वाज देयर बिटवीन 2008, एक मिनट, ये जो मून का दशा जो है 2008 से 2018 तक था। ओके, मून का दशा, करेक्ट।
तो Yes, sir. Yes. जब मून का दशा था तभी उसका कितना एज था? 2008 लगाओ। 79 89 29 99 29 का होगा। 99 29 ओके 29 around. मून की महादशा थी। हाँ, तो तभी शादी हो गया रहेगा वही टाइम पे। तो 2008 में रेगुलर मिसकैरेज होने का या ट्रीटमेंट लेने का ये सब हुआ होगा। यस, उसका 2 बार मिसकैरेज हुआ है हाँ, और थर्ड अटेम्प्ट में उसको मतलब विदाउट एनी मेडिकेशन शी हैड दिस चाइल्ड। हाँ, तो दैट मीन्स व्हाट वी डिड, मून वहां पर जो है वीक है बिकॉज जुपिटर का कक्षा में है। तो जुपिटर तो मून का दशा में ये सब प्रॉब्लम देगा कि नहीं? और मून का दशा में जुपिटर का अंतरदशा में, क्योंकि जुपिटर ने पॉइंट नहीं दिया है ना, तो मून दशा जुपिटर अंतरदशा में ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम दिया होगा। सर पल्लवी, मुझे डाउट था यहाँ पे। एक मिनट, पल्लवी को कंफर्म सर। करने दो। यस सर, यस सर। Between, you can see the dasha now, 2011 July to November 2012, she would have faced lot of problem with respect to the बच्चा का conceiving वो सब। नहीं, बच्चा तो उसको मतलब 2004 में हो गया था। 2000 में शादी हुई, 2004 में शी हैड द गर्ल चाइल्ड, बट अराउंड 2011 10 और 12 के बीच में उसको यूट्रस का बहुत प्रॉब्लम था। करेक्ट, शी हैड बीन ऑपरेटेड फॉर 2 और थ्राइस। करेक्ट। तो अभी मून इज यूट्रस बोला, जुपिटर ने पॉइंट नहीं दिया है, तो मैंने क्या किया, मून का दशा में जुपिटर का अंतरदशा गया। अंतरदशा विल नॉट बी गुड नो, बिकॉज मून इज इन द कक्षा ऑफ जुपिटर हु हैज नॉट गिवन द पॉइंट। सो मून का दशा में जुपिटर का अंतरदशा में रिजल्ट्स विल नॉट बी गुड। उसी समय पे उनको जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड है, उसी समय पे उनको हेल्थ इश्यूज दिया होगा। पल्लवी, यस सर। उसी समय पे उनका पिताजी का भी हेल्थ बिगड़ा होगा। पिताजी को तब भी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका मदर की हेल्थ इश्यू था। मदर नहीं, हाँ, मून इज मदर, करेक्ट, मून इज मदर, मदर का हेल्थ इश्यू था। बिकॉज मून इज मदर, जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड। ओके, अभी फादर को भी कुछ हो गया होगा तभी। दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके, हाँ, मदर आई नो, फादर का नहीं मालूम। ओके, अरविंद पूछो क्या चाहिए था अभी। सर एसेंडेंट के टाइम पे अपन ने उसका मार्स का ही अपन विनाशक देखा था, उसमें कैंसर में उसने पॉइंट नहीं दिया करके। ये मून के लिए हमने फिर जुपिटर का कक्षा लिया, तो जुपिटर का विनाशक और क्यों नहीं लिया इसमें फिर? जुपिटर का विनाशक मैं लिया ही नहीं ना, उधर भी मार्स का विनाशक थोड़ी लिया मैंने, एसेंडेंट का विनाशक पर किया था मैंने। अच्छा, एसेंडेंट का विनाशक देखो ना, इधर एसेंडेंट लग्ना, यहाँ पर मून का कक्षा ही दिया मैंने। मून का कक्षा में एसेंडेंट के टाइम पे एसेंडेंट का विनाशक और लिया, उसमें मार्स में नहीं दिया है कर्क राशि को। ओके, तो मून के मैंने मार्स का विनाशक पर थोड़ी गया, मैंने मार्स का खाली लॉर्डशिप लिया मैंने, और कहाँ बैठा देखा, उतना ही देखा मैंने। लेंगे और ठीक है, बोलो सर। बराबर है ना? यस सर। अभी हम लोग जाएंगे करंट दशा में जाएंगे। ओके, करंट दशा। ओके, अभी करंट दशा क्या है? राहु का दशा। ओके, राहु में राहु। राहु कैसा है यहाँ पर? राहु राहु किधर है?
राहु में राहु चल रहा है। राहु की तरह। अभी दूसरा कोई ले लो, दूसरा कोई ले लो, अटेम्प्ट करो। राहुल सेकंड हाउस में सर। Second house. Who will do it? Second. Who will do it now? Sir, Only one person will do. Only one person. Who will do? कौन करेगा? शिशिर लेगा क्या? शिशिर, अरे कोई बोलो। सर शिशिर तुम लेगा, अटेम्प्ट करेगा? हाँ, अटेम्प्ट करेगा? यस सर। क्या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, ले लो। राहु का कैसा देखा? राहु का दशा चल रहा है और राहु का अंतर्दशा। राहु कैसा करेगा? मैं राहु का ओके। राहु का मैं प्रश्नष्टक तो पर ले रहा राहु हूँ। इसके सेकंड हाउस। जी। राहु बेसिकली 23rd डिग्री है, तो 23rd डिग्री आई थिंक ये जाएगा शायद मून में। तो मून ने सिंह को 1 पॉइंट दिया है, तो मतलब राहु का दशा कंपैरेटिवली अच्छा जाना चाहिए रिलेटिवली। अभी बाकी सिंह राशि में बैठा हुआ है और नहीं, पहले बात तो वहां कौन सा से कक्षा में, कौन सा कक्षा में है? सब मून की कक्षा में रहेगा ना, 23 डिग्री है तो 3:45, 7:30, 11:15, 15, 23 डिग्री है ना, तो मून में जाएगा ना। 18:45 एंड 18:45 18:45 से हो गया 22 हाफ, 22 हाफ के बाद 22:15 22:15 बाद में देन जाएगा मून का 23 मून में। हाँ, मून का में जाएगा ओके, मून की और तरह। मून ने पॉइंट दिया है हाँ तो सिंह राशि में। हाँ तो मून ने पॉइंट भी दिया है उसको। तो क्या बोलेगा? हाउ विल यू प्रेडिक्ट? तो अभी बिन्नाष्टक relative- कितना रखना है सर? लेकिन इसमें मून का ना, राहु का ही मैं ले रहा हूँ, राहु का ही विनाशक पर ले रहा हूँ। राहु का देखो राहु है ना मून की कक्षा में है और मून उसको पॉइंट दे रहा है, तो रिलेटिवली ये पीरियड उसका अच्छा जाना चाहिए। तो ये पीरियड में राहु की जो सिग्निफिकेंस ये है अच्छा उससे जाना उसको चाहिए। मैंने अच्छा जाना चाहिए क्या हिसाब से अच्छा चल रहा है? ऐसे जनरल नहीं बोलने का सर, लेकिन राहु का बिन्नाष्टक तो इसमें दिया नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये जो अष्टक वर्ग का है ना, अष्टक वर्ग का बुक में राष्ट्र में राहु का है। सेम मेथोडोलॉजी यूज करने का, के सेम मेथोडोलॉजी। ओके। कौन सा पेज में मेरा बुक में, कौन सा पेज में देखता हूँ रुको। आपने दिया था एक बार, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से राहु केतु का नहीं दिया हुआ है। नहीं, आप लोग सॉफ्टवेयर में नहीं जाता। दूसरा बेसिस में भी करेंगे, बताता हूँ। पेज नंबर 200 पे है। हाँ, मेरा जुना बुक है तो उसमें राहु केतु का है, वो देख लो, ठीक है। अभी मैंने राहु का बताया, तो राहु का दशा क्या हो सकता है मेरे को बताओ ना। सर वही तो बता रहा हूँ। अभी राहु जो इसके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के और शनि के साथ में। नहीं, तो शनि का अगर सब इंक्लूड मत मैथ्स करो। नहीं, शनि को इंक्लूड मत करो, Okay. खाली चंद्र को ले लो। ओनली राहु। नहीं यार, राहु इज सिटिंग इन द मून कक्षा, तो उस और मून हैज गिवन द पॉइंट, उसका मेरे को रिजल्ट दो। ओके, तो उसका रिजल्ट अगर देखें तो राहु जो मून के साथ बैठा हुआ है प्लस मून उसको पॉइंट दे रहा है, तो और मून लग्नेश भी है, तो उसके हेल्थ वाइज उसको अच्छा रहना चाहिए। ये पीरियड में अगर कोई बीमारी है तो शायद से रिकवरी अच्छी हो जाए उसकी। नहीं, बीमारी क्यों लिया? 6th हाउस 8th हाउस दिखता है क्या वहां पर? जैसे 6th हाउस 8th हाउस नहीं दिखता, लेकिन लग्न में मून लग्नेश है ना, और मून उसको पॉइंट दे रहा है, तो उसको लग्न को बेनिफिट देना चाहिए उसे। तो अगर उसको कोई पुरानी बीमारी है नहीं, यू विल सर यहाँ पे फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस ही आएगा ना सिर्फ? हाँ, ओनली फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का ही रिलेटेड बोलो मेरे को। और मून इज, एक मिनट, मून इज चेंज, मून इज यहाँ पर लॉर्ड के हिसाब से फल लेगा ना सर। एक मिनट, तो राहु का दशा में ये जो पैसे कमाने का, उसमें कुछ चेंज किया रहेगा उसमें,
बिजनेस उसका में या पैटर्न बदलेगा, बिजनेस पैटर्न चेंज होगा। बदली करेगा। पल्लवी मेरे को बोलो, बराबर है? Yes, she had changed the job. मतलब Correct. she is into teaching job. हम्म First, she was only a shadow teacher, हम्म and then she did her B.Ed, and now she is a pre-primary teacher. Means she is first standard को cater करती है तो राहु as a दशा में, woman. राहु दशा में इसको चेंज मिला ना। हम्म, और सर मदर से ही पैसे मिले रहेंगे, इसको वेल्थ एक मिली एक रहेगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राहु दशा में चेंज मिला। सेकंड हाउस इस अर्थ त्रिकोण, इसके लिए मैंने पैसा बोला। हम्म, 2 6 10 इज अर्थ त्रिकोण, इसके लिए मैंने पैसा बोला। ओके, इसके लिए पैसा बोला। अभी ये मदर के साइड से भी पैसा आया हो सकता है। हम्म, पल्लवी, हाँ, mother is a wealthy personality. हम्म So now and then she gets a pretty good मतलब gifts and amounts from their side. राहु दशा में, और सर हाँ, क्या? राहु दशा में हाँ, मतलब as per her talking, when we have a conversation, she tells that she gets very good gifts from her mother side, and उसकी mom का मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, उसकी mom का मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है, वाड़ी है और वो सब। then she is one of the as a sibling, उसका है भाग। अच्छा, और सर राहु की दशा में इसकी 2-8 एक्सिस भी एक्टिव होगी, जहाँ पे वीनस अगेन पॉइंट दे रहा है सिंह राशि को। नहीं वो सब अभी मत करो, मैं अभी खाली कक्षा के हिसाब से ही जाओ। अभी हमने क्या किया, कक्षा में राहु का जो कक्षा है, मून का कक्षा है, मून ने पॉइंट दिया करके हम लोग सब पॉजिटिव बोला उसके बारे में। जी, वो फर्स्ट हाउस इज नेटिव, सेकंड हाउस इज मनी, करेक्ट, एंड मून इज चेंज कारकत्व। सेकंड हाउस इज अर्थ त्रिकोण, कमाना, मनी, उसमें चेंज, मून इज चेंज। ओके, बराबर। अभी राहु इज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, बराबर है? यस सर। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के साइड से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को रिलेटेड से भी कुछ पैसा आने का संभावना है। पल्लवी, यस, आई टोल्ड ना कि उसका वाड़ी और सब है ना, तो उसको हिस्सा मिला है। अच्छा, दादा का ही है ना प्रॉपर्टी, देन हम्म उसके दादा ऑफ हुए तो सबका बंटवारा हुआ है। करेक्ट ना, करेक्ट। अगर ये मून फैमिली वेल्थ में हिस्सा मिला। अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल So एग्जांपल we दे रहा say कि as it is the second house of the eyes, left eye for the female, हूं। तो उधर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, आवाज चली गई, नेगेटिव नहीं होगा उधर। अगर पॉइंट मेरा आवाज नहीं सुन रहा है? हैंग हो गए थे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पराग व्हाट आई एम सेइंग, यू आर अप्लाइंग दैट शी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हर हेल्थ इन द राहु महादशा, okay, based on the promise of the chart. Now I will tell you how to apply the transit later. Okay, based on the Rahu Mahadasha, she will not have any problem in the health. We have so far said all positive. We have so far said all positive because moon के कक्षा में है, moon ने पॉइंट दिया है। अगर मैं हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूं, अगर मून ने पॉइंट नहीं दिया होता तो वो मून फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है, बराबर। तो यहां पर राहु पैरेंटल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, तो वहां से उसको पैसा मिलना, सेकंड हाउस में मून है, वहां से प्रॉपर्टी को पैसा मिलना उसको तकलीफ होगा, मिलेगा नहीं। ऐसा करके मैं नेगेटिव बोलूंगा मैं।
ओके, समझा? जी अभी सर। अभी मैं राहु का ट्रांजिट लेता हूं। ओके, राहु का ट्रांजिट, ठीक है? ले लू क्या? राहु जी का सर। ट्रांजिट, ओके। अभी राहु का दशा चल रहा है। But sir, I'm coming to that. I know what you want to tell. I will prove it to you. I know what you want to tell. okay. Hold on. Okay. And now I'm applying the transit now. We have gone with the static analysis अभी। खाली दशा को लेके हम लोग ने अभी दशा का जब लगाता है ट्रांजिट भी लगाना चाहिए। हम लोग ने प्रॉमिस देखा, राहु का प्रॉमिस देखा हम लोग ने, मून के कक्षा में है करके। अभी what I'm doing is I'm doing transit, then things will come correctly. Now see, because transit is the current state of the native. Okay? अभी ascendant 9 डिग्री में है, बराबर? हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अभी यस सर। अभी आप लोग ने नेटल नवांश कुछ पढ़ा नहीं है, मैं बताता हूं। ओके, 64th नवांश में सेम 9 डिग्री में जब राहु यहां पर जाएगा ट्रांजिट में, ओके, आएगा राहु जब 9 डिग्री में जाएगा, ये डिग्री में अप्रैल मई जून 2026 में उनको एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आया होगा। मालूम है पल्लवी, सर मुझे लगता है इसको नहीं आएगा, इसके पार्टनर को आएगा। नहीं, इसको भी आएगा। पल्लवी, अपोजिशन में जाएगा ना। Yes, Arvind sir is right. उनके पार्टनर को आया था। सर सेकंड हाउस है ना, तो वहां पे वो 7 से 8 का अपन कंडीशन लगाएंगे तो पार्टनर को आएगा सर। नहीं, देखो, एसेंडेंट का डिग्री जो है 9 डिग्री है, उसका 8th हाउस में, एग्जैक्ट 8th हाउस में 64th नवांशा बोलते हैं उसको, डिग्री 64th नवांशा। खरं नवांश. हाँ, खर नवांशा, करेक्ट। तो तभी भी मई जून इसको भी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आया है, फोन करके पूछो। हाँ, उसका नहीं, मुझे मालूम है। दोनों का था साइमल्टेनियस, आगे पीछे। उसके हस्बैंड को बैक में ड्यू टू कोविड साइड इफेक्ट उन्होंने जो इंजेक्शन लिया था, तो उनका स्पाइन में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है ना, हिप में, उसमें पूरा बॉल स्टील का डाला है दोनों साइड। नहीं, ये फीमेल को क्या हो गया? बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द फीमेल, एसेंडेंट डिग्री ले रहा हूं मैं इसके लिए। हाँ, फीमेल को वापस फाइब्रॉइड हो गया था इन अ वेरी मेजर, मतलब बहुत बड़ा हुआ था, मेजर था, एंड शी हैड गॉन अ वेरी, आई थिंक 2.5 आवर ऑपरेशन फॉर दैट। मई जून में ही हुआ था। हाँ, करेक्ट, समझ गया। हाँ, अभी दोनों yes था। हाँ, अभी जो है ना, अभी नाउ ये जो हम लोग ने क्या किया, राहु का ट्रांजिट लिया। ओके, अभी सेम जो अभी मैं क्यों 64th नवांशा में प्रेस कर रहा हूं, we were talking of death and disease and all those things in the last class, and somebody wanted to do that in detail, correct no? Yes, sir. यस सर। Okay, now the same thing would have happened when Saturn transited in the same 9 degree in the sign Aquarius. Both that would have been, I will tell you when. This is the 64th Navamsha degree. Confirm to me, now. Yes, sir. In the month of January, February 2023, around that time also she had faced several problems of health. Yeah, she is facing now and then. नहीं, वो टाइम में क्या हुआ था? वो टाइम पे उसके पापा को हार्ट अटैक आया। उसको क्या हुआ था? उसको यही मतलब यूट्रस का बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, वो टाइम पे क्या हुआ था? आई थिंक ये टाइम पे है ना, 23 में शी गॉट आउट फ्रॉम हर हाउस। She went इन-लॉज out. से, हाँ, या
जॉब करके बाहर चली गई थी। जनवरी 24, या जनवरी क्योंकि 4 24, साल वो दिसंबर बाहर 23। यस। ओके, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट में इधर है, देखो 9 डिग्री में है, करेक्ट, 9 डिग्री में है, करेक्ट। और वो सैटर्न जो है एसेंडेंट का 9 डिग्री में एग्जैक्टली 8th हाउस में गया। क्लियर है? यस समझा? सबको समझा? तो मैंने क्या किया, पहले दशा लिया, दशा किधर बैठा है वो देखा, तो दशा बड़ा दशा होने से ट्रांजिट ऑल्सो कैन गिव यू प्रॉब्लम। ओके, नाउ द करंट ट्रांजिट वी विल टेक, करंट ट्रांजिट। ओके, अभी कौन करेगा ये? राहु इज गोइंग। सर एक हाँ, सर एक क्वेश्चन था कि मान लो कुंडली में योग कारक ग्रह है और उसकी दशा चल रही है, और वो ट्रांजिट में जब 64th नवांश पे जाता है एग्जैक्ट डिग्री, तो वो भी बुरा फल देगा? हाँ, नहीं नहीं, भले ही वो योग कारक है, भले ही पावरफुल है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो जो दशा है। ओके, अभी उसकी कक्षा में पॉइंट एक दे रहा है मिनट, कि नहीं, उसके एक ऊपर मिनट, डिपेंड करेगा। एक मिनट, एक मिनट, देखो अभी जुपिटर यहां पर योग कारक है, योग कारक है ना, यस, 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है ना, योग कारक है ना। मगर ये जुपिटर, हम लोग ने जुपिटर का कक्षा सब देख लिया था, हम लोग ने मार्स का कक्षा में था, मार्स ने पॉइंट नहीं दिया, वो सब देखा ना हम लोग ने। सर योग कारक ग्रह तो यहाँ पे मार्स होगा सर, कर्क लग्न है ना। मार्स होगा, 5th and 10th का लॉर्ड, जुपिटर भी होगा, 5th and 10th का लॉर्ड, जुपिटर भी होगा, मार्स भी होगा, 9th लॉर्ड। जुपिटर भी होगा, मार्स भी होगा। फॉर अ योग कारक के लिए त्रिकोण लॉर्ड और केंद्र लॉर्ड का लॉर्डशिप होना जरूरी है, बराबर। यस, कर्क लगन लग्न के इज लिए, त्रिकोण एंड केंद्र बोथ। कर्क लगन के लिए, कर्क लगन के लिए गुरु जो है ना, छठे भाव का भी मालिक है, नवम स्थान का भी मालिक, नवम स्थान का भी मालिक है। ओके सर छठा भाव अपन केंद्र त्रिकोण में कैसे लेंगे सर? नहीं नहीं का तो कंडीशन क्या है? नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, छठे भाव का भी मालिक है और नवम स्थान का भी मालिक है। ओके, तो कभी कभी कर्क लगन के लिए गुरु जो है ना, वो छठे भाव का भी काम कर सकता है, नवम भाव का भी काम कर सकता है जी। यहां पर गुरु जो है नवम भाव का ही काम करेगा। क्यों? बिकॉज गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में है। ओके, उसको कोई प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं करता है, और एक गुरु जो है वो मंगल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मंगल भी उत्तर पदपदा शनि के नक्षत्र में है। ओके, तो गुरु यहां पर योग कारक बन जाता है, वो छठे भाव का रिजल्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये नवम स्थान का ही रिजल्ट देगा गुरु। समझ गया? क्योंकि जुपिटर इज कनेक्टेड विद मार्स। जब देखा था तो जुपिटर तो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है कक्षा के हिसाब से। कक्षा के हिसाब से अरविंद भाई, नहीं नहीं, कक्षा के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, जुपिटर 6th एंड 9th हाउस का लॉर्ड है। मैं कक्षा का तो हमारा हो गया, मार्स का कक्षा में करके वो हो गया अपना बात। सर 6th का क्यों नहीं देगा, वो नहीं समझा। 6th का रिजल्ट क्यों नहीं देगा, वो नहीं समझा। एक मिनट, 9th is more powerful. 9 is more powerful. हाँ, क्योंकि 6th हाउस का अगर समझो ये जो जुपिटर है, ओके, ये जुपिटर समझो यहां पर राहु है, जुपिटर का आगे राहु है, समझो जुपिटर के साथ राहु है समझो, या जुपिटर को शनि देखता है समझो। ओके, करेक्ट है, और या जुपिटर को बुध देखता है समझो। तो जुपिटर नवम भाव का रिजल्ट नहीं देगा, जुपिटर छठे भाव का रिजल्ट देगा, तो तभी जुपिटर योग कारक नहीं बनेगा। समझ में आया क्या? सर जब ये जुपिटर 64th नवांश में जाएगा तो फल अच्छा देगा बुरा देगा? जुपिटर 64th नाम से नहीं जाएगा, जुपिटर का डिग्री से कोई मैलेफिक प्लैनेट 64th नाम में जाएगा। तो अभी बताता हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी रुको बताता हूँ। देखो 5 डिग्री में है ना जुपिटर, जी, करेक्ट,
अभी देखो मैं क्या करता हूं। शनि को अभी सर मैन्युअली एक बताओ 5 डिग्री का कैसे डायरेक्ट लिया हाँ 64 नहीं वो 5 डिग्री का, क्योंकि जो 8th हाउस में जब भी सेम 8th हाउस में जब प्लैनेट जाता है ना उसको 64 नवांशा बोलते हैं, करण नवांश। तो ये जो मतलब सैटर्न जो है ना सैटर्न, ओके, सैटर्न जब वहां पर 5.43 डिग्रीज में गया उस साल में देखो बताता हूं कभी है वो। अक्टूबर नवंबर 2023 में, ओके, अक्टूबर नवंबर 2023 में, हाँ पल्लवी, यस सर। अक्टूबर नवंबर यानी 1 मिनट, अक्टूबर नवंबर में उधर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। आई एम जस्ट टेकिंग ट्रांजिट सैटर्न इन द 8th हाउस फ्रॉम द जुपिटर। हाँ शिशिर, जी सर। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग सैटर्न इन द सेम डिग्री, वो मैं बताता हूं कभी है, रुको, देन कंफर्म द इवेंट। ओके, हाँ February March 2023 में Jupiter is 6th house lord, Jupiter is 9th house lord and Jupiter is in Lagna। तो February March ये टाइम पे पिताजी का हेल्थ खराब होना, इनका हेल्थ खराब होना, ओके, इनको जॉब में प्रॉब्लम देना, क्योंकि 6th हाउस, ये सब February March 2023 में हो गया होगा। सर आई वुड लाइक टू शेयर दैट यही मीन टाइम पे फादर को हार्ट अटैक आया था। हाँ In her job, she wanted growth, so at that time she had done her B.Ed, distance learning B.Ed करते हैं ना, वो किया था, and then she changed her job to a new school। वो टाइम पे क्या चेंज किया उसने? ओके, हाँ जुपिटर इज बच्चा, ओके, जुपिटर इज चिल्ड्रन, तो बच्चे को भी लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, बच्चे को लेके प्रॉब्लम क्या हुआ, दैट he had introduced her partner to them the college में, and so they had some issues, but later on it got resolved। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था ना बच्चे का रिलेशनशिप का या कुछ भी लेके प्रॉब्लम होगा करके, या मैं बताया था ना। अभी शिशिर मैंने क्या किया, जुपिटर 64 नवांशा नहीं बोल रहा हूं, जुपिटर से कोई मैलेफिक प्लैनेट से 64 देखा। हाँ समझा, क्लियर है? एक क्वेश्चन है सर, ये 64 नवांश हमेशा लग्न से ही देखना है या फिर प्लैनेट से भी देखना है? अभी प्लैनेट से देखा ना मैंने, बट वो इवेंचुअली लग्न में ही था ना। लग्न प्लैनेट से देखा ना, यू टेक इट फ्रॉम एनी प्लैनेट, टेक इट फ्रॉम एनी मतलब प्लैनेट, कहीं से भी एनालाइज कर सकते हैं। हाँ समझ गया, क्लियर है? जी सर। क्लियर है, समझ गया? कैलकुलेशन कैसे करेंगे डिग्री वाइज? नवांशा 64 into 320 करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है, कैलकुलेशन में जाओ मत, कैलकुलेशन में जाओ मत, जो डिग्री है कोई भी प्लैनेट से 8th हाउस में सेम डिग्री में कोई मैलेफिक प्लैनेट जाएगा, प्रॉब्लम देगा। ओके, उसका कारकत्व को लेके, उसका कारकत्व, एक मिनट, उसका कारकत्व को लेके और उसका लॉर्डशिप को लेके और जहां बैठा है उसको लेके, 3। ओके सर आपने अब तक तो उसका हेल्थ और उसके फादर का हेल्थ वही डिस्कस किया, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव शी इज गिविंग अ हार्ड टाइम टू हर ओन फैमिली, मींस वो ठीक है, वो देखेगा, वी जस्ट टुक लिमिटेड ये लिया हम लोग। ये राहु में ही हुआ है, ये राहु का ही महादशा में हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो नेक्स्ट क्लास में दिखाएगा वो कैसे करने का सब लेके। वैसे D1 भी सेकंड हाउस खराब हो रहा है ना। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर? ओके सर, यस।
चलो Thank you. थैंक्स थैंक यू Thank you, सर sir. Thank you, sir. Thank you.